See, role of SEBI is to regulate the company to promote better corporate governance. Reliance Jio, तो Reliance Jio is a telecom company. This is a telecom sector initiative. रेगुलेटरी शॉपिंग उसको बोलते हैं कि मान लो कि आपका जैसे कि फ्लॉ राइट किसी रेगुलेटर ने पकड़ लिया लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन जब कंपनी बनाया तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पता होना चाहिए और सेबी को कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताना चाहिए. इंटरनल कम्युनिकेशन. So basically let's take that कि coordination क्या होता है, तो क्यों होना चाहिए. That's why once they have used product diversification, coordination. Now let's take that कि what happens. The first issue came in 2011, major issue recent times. It is called ULIP. It is called unit linked insurance plan. Since it is related to insurance plan, let's say it is insurance plan, let's say by insurance company, let's say it is insurance related policy, let's say that the insurance related policy, I think anything is regulated by IRD. Yes, but it was listed in the market. Yes, unit link ULIP, let's say that it was a market instrument. Yes, and it was a market instrument by an insurance company. So that is how, let's say that SEBI says that it should regulate. See, there is insurance company, as long as it is not listed, so there is no role of SEBI. Right? It can play a very general role. It is the insurance company, so this is how, let's say that IRDA will regulate insurance related company. Now, if insurance companies are listed in the stock market, so SEBI will regulate. This, it means there are two regulators. It is insurance company, the insurance related matters, so IRDA will regulate. Market related, it's, let's say that matters, so it is SEBI which will regulate. Yes. Two regulators. See, role of SEBI is to regulate the company to promote better corporate governance. तो SEBI का रोल है कि एज ए कंपनी यू शुड गवर्न बेटर. SEBI does not regulate your, let's say, product, but insurance company will regulate your product, insurance related policies. The insurance related policies should conform to the IRDA regulatory norms. This, but as a company you are regulated by SEBI if you are listed in the stock market. This, so there are two regulators. So they started talking that IRDA says it will regulate, SEBI says it will regulate. Conflicts happen between them. Conflicts resulted into two questions, one in GS, another in optional. दो क्वेश्चन आया उस किसी कभी कभी कुछ ऐसे ऑप्शनल्स हैं जहाँ जीएस में भी क्वेश्चन आता है और ऑप्शनल में भी आता है. रिपीट आंसर. दिस एनीहाउ, तो जीएस में उन्होंने यूलिप का नाम नहीं लिया था, बट ऑप्शनल में उन्होंने नाम लिया. 2013 वाला क्वेश्चन में. एनीहाउ, लेट्स यू फाइंड आउट कि देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन them. They should themselves coordinate. They should have coordinated. Since they did not coordinate, the government came up with
FSDC। गवर्नमेंट ने एक कोऑर्डिनेशन के लिए ही बॉडी क्रिएट कर दिया, राइट। यू कैन इमेजिन कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम था। तो गवर्नमेंट क्रिएटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल 2011। बस। Now, next major issue comes. It is called Reliance Jio. And conflict between Competition Commission of India. This. So what is the conflict? Try to understand. Reliance Jio, to Reliance Jio is a telecom company. This is a telecom sector initiative. It should be regulated by TRAI. TRAI regulates telecom company. But Reliance Jio as a policy, let's say that, was curtailing competition. Right. It was considered as a predatory pricing. Right. Predatory pricing means a hidden type of thing in that policy to eliminate competition. This. Like आप फ्री में दे रहे हो इसलिए कि आप फ्री में देना चाहते हो या आप दूसरे वाले को छुट्टी कर देना चाहते हो, दोनों तरीका है उसका। सो रिलायंस ने बोला कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। So since in service of nation we want to make, let's say, phone accessible to all, so therefore Reliance Jio will help in service to nation. बट ये सर्विस टू नेशन है या मार्केट में आने के लिए आप एयरटेल वोडाफोन को उन्होंने बोला कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग। फिर आप कहां से पैसा लाओगे? हाउ यू आर गिविंग दिस फ्री? दिस हाउ यू आर एबल टू गिव द सर्विस फ्री? एंड शुड वी गिव सर्विस फ्री? दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन. Should a company be free to give service free? Hey, because it will affect competition. But TRAI did not take any decision. Jio Jindabad. This is how insurance. तो अब तो खत्म हो गया, सारा मामला ही खत्म हो गया. बट जियो के आने की वजह से मार्केट में सिर्फ 3 प्लेयर बच गए. टेलीकॉम सेक्टर में कभी 6-7 प्लेयर्स हुआ करते थे, अब जस्ट 3 प्लेयर्स है, वोडाफोन, एयरटेल एंड रिलायंस, मोनोपोली. और इसके वजह से कॉल ड्रॉप शुरू हुआ, कॉल ड्रॉप कल्चर. इसलिए कि बाकी लोग कैसे अपना प्राइस लेट्स से दैट कि वो करेंगे, बाकी लोगों को भी प्राइस कम करना पड़ेगा. और कॉल ड्रॉप होने लगा लोगों का. आप फोन पे बात कर रहे हो, फोन ही कट डिस्कनेक्ट हो गया, आपको लगा कि फोन में प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली कॉल्स को ड्रॉप करना शुरू किया, मतलब डिस्कनेक्ट शुरू किया कि फिर से आप कनेक्ट करोगे. राइट. जब फिर से कनेक्ट करोगे तो फिर पैसा लगेगा. गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर था हमारे देश के लिए, तो चलता है ऐसा. राइट. ये बात टेलीकॉम मिनिस्टर तक गया था, टेलीकॉम मिनिस्टर को बोलना पड़ा था इसके बारे में. तो लोगों का कॉल बात करते करते बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया, बार बार कई बार 3-4 बार डिस्कनेक्ट हो गया. लोगों को लग रहा है कि ये नेटवर्क प्रॉब्लम है. दैट इज हाउ इट हैपेंड. सो दे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से दैट कि हमारा बर्थ राइट है कि वी हैव टू डील अगेंस्ट एनी सच मोनोपोली. And it is a predatory pricing, so it is a monopoly related matter. And TRAI say कि no, we deal with telecom. Right. So that was another open conflict. Fortunately, this time no any institution is created. This. So that is how coordination problem. Right. तीसरा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, वो बिना कन्फ्लिक्ट के कोऑर्डिनेशन की जरूरत है.
उस तरह के रेगुलेटरी शॉपिंग को एड्रेस करने के लिए। इस तरह के स्कैम्स इसलिए होते हैं कि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। यस, रेगुलेटरी शॉपिंग उसको बोलते हैं कि मान लो कि आपका जैसे कि फ्लॉ, राइट, किसी रेगुलेटर ने पकड़ लिया लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, या आपको लगा कि दिस रेगुलेटर ने आपके फ्लॉ को पकड़ लिया है तो आप उसको जैसे बाईपास कर देते हो। आप कुछ ऐसे पॉलिसी लेके आते हो कि उसका उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं होगा, राइट। ऐसे सुनो आप, जैसे कि शारदा स्कैम हुआ था वेस्ट बंगाल में, राइट। इन शारदा स्कैम इट हैपेंस दैट बेसिकली इट वाज ए चिट फंड कंपनी, यू नो दैट दिस पोंजी स्कैम जिसको बोला जाता है। तो चिट फंड कंपनी वाज बट चिट फंड बनाते बनाते इन्होंने बड़ा फंड बनाने लगे। सो दे एंटर्ड इन मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वो सिक्योरिटी इशू करने लगे, शेयर इशू करने लगे, और इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, लोन देने लगे। जिस तो चिट फंड छोटा मतलब काम करते करते वो बड़ा काम करने लगे, राइट। तो सेबी ने पकड़ लिया उनको, सेबी, तो सेबी कॉट देम इन 2009। तो सेबी ने वार्न किया कि देखो सुधर जाओ, मतलब मान जाओ, ये सब मत करो। फर्स्ट दे गिव वार्निंग। अब हमारे देश में तो लोग वार्निंग के बाद पता ही है सुधरते नहीं है और भी, राइट। तो उन्होंने 200 कंपनी बनाया, एक नहीं 200 कंपनी बनाया। आप समझ सकते हो, जो लोग चीट करते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यहां एक कंपनी नहीं बनता है, राइट। 200 कंपनीज बनाए, किस लिए? सेबी को बाईपास करने के लिए। सेबी के जुरिस्डिक्शन को बाईपास करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा जैसे तरीके से कंपनीज बनाया कि सेबी का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। यस, दैट इज व्हाट रेगुलेटरी शॉपिंग। लेकिन जब कंपनी बनाया तो मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स को पता होना चाहिए और सेबी को कारपोरेट अफेयर्स को बताना चाहिए। इंटरनल कम्युनिकेशन, तो सेबी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर, राइट। कि शारदा वाले, दिस इज हाउ, सो दिस इज हाउ दे आर डूइंग फ्रॉडुलेंट एक्ट्स, बी अवेयर, बट दे डू नॉट इन्फॉर्म, दे डू नॉट कम्युनिकेट। यस, एंड देन सेबी तो मान लो एक बार जब स्क्रूटनी हो जाता है हाईलाइट, फिर से जब हाईलाइट हुआ तो न्यूज में आ गया। बेसिकली एक बार सेबी ने मान लो वार्न किया तो न्यूज आने लगता है ना, न्यूज आता है। फिर लेट्स से दैट कि इट अगेन लेट्स से दैट कि सेंड्स नोटिस एटसेट्रा, द न्यूज आया। जब न्यूज में आया तो लोग पैनिक हो गए तो पैसा उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। इट हैज बारोड लेट्स से दैट कि मोर देन मींस इट हैज इन्वेस्टेड मोर देन व्हाट इट बारोड। जब लोगों से बारो करते गए और इधर इन्वेस्ट करते गए हो और लोगों से प्रॉमिस ज्यादा रिटर्न करते गए, जब लोगों ने पैसा विड्रॉ करना शुरू किया तो उनके पास पैसा ही नहीं है, तो कोलैप्स हो गया, सब प्राइम क्राइसिस जैसे। 40 पीपल कमिटेड सुसाइड। 40 पीपल, हमारे देश में सब पता नहीं चलता है, बहुत सारे लोग हैं, including 2 ex-DGP. Yes, 2 ex-DGP also committed suicide. This Cobra बच गया।
Right. मिथुन चक्रवर्ती, right. उन्होंने अपने आप को कोबरा बोला था, right. Anyhow, so मिथुन चक्रवर्ती भी थे उसमें, शुभेंदु अधिकारी भी थे, जो आजकल लोग ज्वाइन किए हैं बीजेपी पार्टी, राइट. सबका नाम था उसमें, राइट. दैट इज ए मेजर स्कैम. दिस उसी तरह से सहारा का हुआ था. सहारा ने 2 कंपनी क्रिएट किया था. वो ऑलरेडी एक कंपनी बैंकरप्ट थी, उसका जो पेड अप कैपिटल था वो बैंकरप्ट कंपनी थी वो, और उन्होंने शेयर इशू किया अपने ही एम्प्लॉइज को सेबी के रूल को वायलेट करते हुए. सेबी ने जब बोला उनको, तो बोला कि आपका जुरिडिक्शन नहीं है. बस फिर केस कोर्ट में जाता है, ब्ला ब्ला बद चीजें होती है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई एंड सेबी शुड कोऑर्डिनेट. So in general also there should be internal coordination between regulatory institutions. This you should know that who is doing what. Yes. If you notice any problem in one entity, you need to inform the other concerned government departments so that they also become aware about this. And that way, let's say, called coordination. So coordination is not only because of this. That is what we can say this.